بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام کل سے آج تک کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور ملک و قوم کے ساتھ سدا شاد و آباد رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو ان کے ارادوں میں ناکام و نامراد کرے۔ ناظرین، جن خبروں پر آج ہماری توجہ مبذول ہوگی اور ہم آپس میں معاملات کو شیئر کریں گے، ان کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے کہ ہماری قومی سوچ ہر تعصب سے ہٹ جائے، ہم اپنی ریاست کی سلامتی، اپنی قوم کی عزت اور اپنی فلاح و بہبود پر اپنی نظر رکھیں، اپنے دھڑے، اپنی پارٹی، اپنے مفادات یا اپنے قبیلے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ جب بھی دیکھیں ہم دھرتی ماں کی طرف دیکھیں اور اس کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے ہر اس معاملے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جو ہمیں قومی سلامتی کی طرف لے کر جائے اور ملک و قوم کی عزت کی طرف لے کر جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ It is unfortunate to see Chief Justice of Pakistan and a convicted person invite to same event, says Imran Khan۔ ناظرین، یہ بات ہے آسما جاگیر کانفرنس کے حوالے سے۔ پہلے بھی باتیں ہوئیں۔ کل آنریبل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے اس موضوع پر، جس میں انہوں نے اپنی تمام تر ریزرویشن کا اظہار کیا ہے اس کانفرنس کے انعقاد پر، اس میں ہونے والی تقاریر پر، اور اس کے انعقاد کے بعد اس میں شمولیت اختیار کرنے والے آنریبل ججز پر، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن کے ساتھ صوبوں اور مرکز کے اور بھی جج صاحبان موجود تھے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جب کسی پر الزام لگ جاتا ہے تو وہ ملزم کہلاتا ہے، اور جب کسی پر جرم ثابت ہو کہ اس کو سزا ہو جائے تو وہ مجرم کہلاتا ہے۔ اب مجرم کے ساتھ وہی جج بیٹھیں جن ججوں نے انہیں سزا دی ہو۔ آج کے چیف جسٹس پاکستان اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب نواز شریف کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی۔ ہمیں پرائم منسٹر کے اس بات کے ساتھ اس حیرت کا مکمل طور پر اندازہ ہے، اور پوری قوم کے ہر ذی شعور انسان کو اس بات پر حیرانی ہے کہ یہ انہونی ہو کیسے گئی۔ بہرحال جن کی چال تھی وہ کامیاب ہوئے۔ نواز شریف نے مینج کروایا تھا، نواز شریف کے کہنے پر کانفرنس ہوئی، نواز شریف کے کہنے پر ٹریبیوٹ ہوئے، نواز شریف کے کہنے پر اداروں کو ذلیل کیا گیا۔ ناظرین، ملک کے دو بڑے ادارے ذلیل کیے گئے اس کانفرنس میں، ایک عدلیہ اور دوسرا فوج۔ اب بتائیں، جس ملک کی عدالتوں کو ذلیل کیا جائے گا، جس ملک کے افواج کو ذلیل کیا جائے گا، اس کے بعد اس ملک کے، اس قوم کے دامن میں کچھ بچا رہ جاتا ہے؟ نام نہاد لبرلزم کے علاوہ کچھ بچتا ہے؟
नाम नहाज आज़ादियों के सिवा कुछ बचता है? जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ बचता है? मुल्क और कौम की तबाही के सिवा कुछ बचता है? और आने वाली नस्लों के बिगाड़ के सिवा कुछ बचता है? लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की यह हैरानी अपनी जगह पे दुरुस्त है, और मैंने यही गुजारिश की है कि इस इवेंट पर जिस तरह से जो कुछ हुआ उस पर हर ज़ी शऊर इंसान हैरान है, पशेमान है और सोचता है कि क्या ये मुल्क तारीख़ की बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर, आग और खून के समंदर से गुज़रकर, खाक और खून के दरियाओं से गुज़रकर, अपनी माँओं बहनों बेटियों को अपने सामने उजड़ता देखकर, अपने जवानों के सीनों में बर्छियाँ उतरते देखकर, अपने मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों पे उछलते देखकर, और अपने लोगों को तारीख़ की बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर शहादत की सूरत में और लुट-पुट कर, उजड़ कर पाकिस्तान हासिल करने वाले सारे के सारे सवाल करते हैं और इस बात पर हैरान और परेशान हैं कि इस मुल्क में ऐसा भी होना था जो आसमा जगीर कॉन्फ्रेंस में हो गया। तो आइए नाजरीन, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरियम अर्ज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निसार टू कम क्लीन ऑन ऑडियो टेप। इस पे डॉन क्या लिखता है? मरियम आस्क्स एक्स सीजे पी not to hide behind institution. Prime Minister turns former Chief Justice audio tape leak a drama. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑडियो टेप लीक जो है ये एक ड्रामा है, और मरियम कहती हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने आप को अदारों के पीछे ना छुपाएं, सामने आएं और अपनी बेगुनाही दें। नाज़रीन, अब आपको एक एक लफ्ज़ से ये चालबाजियां नज़र आनी चाहिए। ये टेप का ड्रामा इसलिए रचाया गया जो एक्सपोज हो चुका है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि जिस तरह से टेप जोड़ी गई और जिस तरह से कौम को, अदलिया को रुस्वा किया गया। अब अदलिया वाले अब भी ना समझें तो कब समझेंगे? यानी बाप और बेटी ने कोई मौका ज़ाया नहीं होने दिया अदलिया को जलील करने का, और एक तारीख है अदारों पर हमले करने की, तारीख है एक बहुत बड़ी। आप इसको देख लें, कब से ये हमला करने लगे हैं, कब से सुप्रीम कोर्ट के हमले से इनका आगाज हुआ है, और कब से इन्होंने जजों को जलील करना, ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है। तो नाज़रीन, अब इसी हवाले से मेरी मुराद है कि वीडियो टेप के हवाले से ये जो अदलिया को स्नप करने के लिए, अदलिया पर दबाव डालने के लिए, अदलिया को जलील करने के लिए, प्रेशर डालकर अपने लिए फैसले लेने के लिए जो आदत है इस ख़ानदान की, अब इस हवाले से कुछ बात और थोड़ी सी चलेगी। आप लोगों ने अदलिया की तौहीन की है। याद रखें, जिस वक्त का जिक्र आप करते हैं उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर थे, साकिब निसार साहब, और उस वक्त वो जज भी अपने ओहदे पर थे जिनको बकौल राना शमीम के वो फ़ोन कर रहे थे कि मरियम नवाज़ की और इनकी ज़मानत नहीं होने देनी नवाज शरीफ की जब तक इलेक्शन ना हो जाए। आपने अदलिया की तौहीन की है, और ये पहली बात नहीं है। अदलिया की तौहीन करना, अदलिया पर कीचड़ उछालना, फ़ौज की तौहीन करना, फ़ौज पर कीचड़ उछालना वतीरा है आपका। और याद रखें कि अब आप कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, अब आप कानून कुदरत की गिरफ्त में आ चुके हैं। आप इस कानून के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अब उसकी लाठी बेआवाज है, वो पड़ चुकी है आप पर। आप कभी भी नहीं बचेंगे अदालतों से, आप कभी भी नहीं बचेंगे पाकिस्तान के अवाम से, आप कभी भी नहीं बचेंगे धरती मां की गिरफ्त से। और कानून कुदरत की लाठी जो बेआवाज होती है वो आपके ख़ानदान के तमाम जिस्मों पर पड़ चुकी है। आपने बड़े झूठ बोले। वो आप ही है ना मरियम नवाज साहबा, वो आप ही है ना कि जिसने ये बयान दिया था कि पूरे पाकिस्तान में मेरे नाम की कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
और फिर वो आप ही हैं जिनके नाम की प्रॉपर्टियां निकली। और ये भी बात आप ही की है ना कि आपने रिश्वत देने के लिए लोगों पर अरबों रुपए मीडिया पर खर्च किए, अपनी प्रोजेक्शन के लिए। हुकूमत के लिए नहीं हुए थे, आपकी प्रोजेक्शन के लिए हुए थे। हुकूमत वो होती है जो मुल्क को कौम के लिए करती है। आप लोगों की ज़ाती प्रोजेक्शन थी, और अगर आपने हुकूमत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए देने होते तो फिर क्यों 92 के को आप रोकते, क्यों समा को रोकते, क्यों एयरवाई को रोकते। लिहाजा इनको चैनल्स को, मखसूस चैनल को देना इसलिए था कि आपकी कासालेसी करें, आपकी तारीफ़ करें। मुल्क और कौम का ख्याल होता तो सारे के सारे मीडिया वाले एक ही लाइन में खड़े करके एक ही तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता। अब आप इस बात पर ज़रा गौर करें, क्या क्या कुछ आप करते हैं। आप लिखते हैं कि साकब निसार बताएं किसने हमें सज़ा देने पर मजबूर किया मरियम नवाज। आप किस हैसियत से उसको कटारे में खड़ा कर रही हैं साकब निसार को, झूठी टेप पर जो झूठी साबित हो चुकी है। यानी आप ये सुनवाकर, ये बताकर दूसरे जजों को खौफजदा करना चाहती हैं। आपने मलक अरशद के साथ जो कुछ किया दुनिया के सामने आ नहीं चुका। आपने फिर चेयरमैन नैब के साथ जो कुछ किया था वो नहीं दुनिया के सामने आ चुका। अब आप साकब निसार के साथ कर रही हैं तो ये भी दुनिया के सामने आ गया है। आप ये सुप्रीम कोर्ट पूछे, ये हाई कोर्ट पूछे, आप कौन है पूछने वाली कि साकब निसार बताएं। गुलाम है आपका कोई, नौकर है साकब निसार आपका कोई, जिससे आप इस तरह से पूछ रही हैं। ये जो आपका अंदाज है ना पूरे खानदान का धमकियां देने का, इस अंदाज ने आपको कैफे किरदार तक पहुंचाना है। आपने बहुत बदनाम किया अदलिया को, आपने बहुत हमले किए अदलिया पर, और आपने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं अदलिया को रुसवा करने के लिए, अदलिया पर हमले करने के लिए, और पाक फौज को बदनाम करने के लिए, पाक फौज पर हमले करने के लिए आपने रिकॉर्ड कायम किए हुए। आपने अब ये जो नया चट्टा खट्टा खोला है, नई जो प्लान की है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। हाई कोर्ट को चाहिए कि आपके खिलाफ बिला ताखीर कार्रवाई करे, नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नवाज शरीफ के खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आपके बाप की तकरीर जजों के साथ बैठा कर करवा दी। और मैं हैरान हूं कि क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है आपको। मैं हैरान हूं कितना बड़ा हौसला है फौज का, कितना बड़ा हौसला है अदालतों का कि आपको खुली छुट्टी मिली हुई है बोलने की। आपको ना आइन की परवाह है, ना आपको कानून की परवाह है। बार बार आप आइन पर हमले कर रहे हैं, बार बार आपके वालिद बाहर बैठे हुए, नवाज शरीफ मुल्क के बाहर बैठे हुए एक इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार किए बैठे हैं कि अगर आपकी हुकूमत है तो ठीक है, आपको छोड़ दिया जाए तो ठीक है, आपको एनआरओ बतौर प्राइम मिनिस्टर के दे दिया जाए तो ठीक है, आपको हुक्मरानी दे दी जाए तो ठीक है, आपको माफ कर दिया जाए तो ठीक है, वरना आप पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगी। हमारे सामने ये बात आ रही है। आप सिर्फ अपनी सियासत चाहते हैं, लुट जाए मुल्क, तबाह हो जाए लोग, आपका सिंहासन कायम रहे। क्यों भाई, क्यों कायम रहे? इंशाअल्लाह अब आप माजी का किस्सा बनेंगे, इबरत तक निशान बनेंगे सारे के सारे। हम पूरे वसूख से कह सकते हैं, और कानून और आइन आपको बनाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।